So this chapter you have done in class 9. Okay. So this was your chapter, and we have few terms here: linear equation, two variables, right? Jan, what do you mean by linear? One. Linear. Suppose I write ax plus b. What is this? What is this? Bobby? It is polynomial. What is the degree of this polynomial? Degree is 1, so it is linear polynomial. Okay, Vanchika, समझ में आया? इसमें वेरिएबल क्या है? Variable is x. And what is the degree? If nothing is written, that means it is variable. It is power. It has power 1. So it is linear. It is linear expression. It is linear polynomial. Okay. If I make equal to 0, now it become linear equation in one variable. Now it has become linear equation. Why it has become equation? Because we have left hand side and we have equal to right hand side. And it is linear because it has degree 1. X is variable. Here x is variable. Usually जो x, y, z बाद के अल्फाबेट्स होते हैं, they are taken as variables. और जो स्टार्टिंग के ABC होते हैं, they are taken as arbitrary constants. Constants coefficients की प्लेस पे रहते हैं. ठीक है, याद रखना x, y, z usually variable में होते हैं. तो इसमें what is x? X is variable. What is the power of x? 1. So it is linear. It is equal to something, so it is equation. It has only one variable, so it is linear equation in one variable. Is it clear? Linear equation in one variable. Now, आप मुझे बताओ, what is the coefficient of x here? A. What is constant term here? B. B is constant term because B is without variable. The term which is without variable is called constant term. Now is it clear? So now when you have studied in class 9, you had this ax plus by plus c is equal to 0. So this was linear equation in two variable and it is the standard form. It is the standard form of linear equation in two variable, right? It is clear? When it is only this part, well, this is not there. So it is linear expression in two variable. Now we put it equal to 0, it becomes linear equation in two variable. Is it clear? Linear equation in two variable. Now what is B here? What is B here? Yeah. Coefficient of y. What is x here? Variable. How many variables are there? 2. Which are they? X and y. Is there any constant term? Yes, C is the constant term. Is it clear? Now, if I write 2x plus 3y plus 6 equal to 0, now these arbitrary constants are replaced by certain numbers. Now it has become a particular equation. It has become a particular equation. I have replaced arbitrary constants. आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्लेस करके नंबर्स की जगह दे दी. अब हमारे पास फिक्स्ड कांस्टेंट्स हो गए. फिक्स्ड. क्लियर? तो ये हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं आर्बिट्री. यहां पर हम अगर बात करेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी इज 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी इज 6, एंड वी ऑलवेज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्स को पहले लिखेंगे, एक्स वाली टर्म को, फिर वाई वाली टर्म को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट को लिखेंगे, फिर इक्वल टू 0 करेंगे. दिस मच इज क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब हमने क्या किया था क्लास 9 में? हमने क्लास 9 में इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी थी. वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज
ऑफ वेरिएबल्स। और सॉल्यूशन को और क्या नाम बोलते हैं? व्हाट एल्स, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सॉल्यूशन? यस, रूट्स। रूट्स इज अनदर नेम फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल such that equation holds good means you are true। हम इसमें पुट करेंगे और ये ट्रू और ट्रू आएगा। हम इसमें x और y की वो वैल्यूज पुट करेंगे सो दैट ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो गया तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मान लो एक सिंपल सा सिचुएशन लेता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें a क्या है 1, b क्या है 1 और c क्या है 10। अगर हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? रिमेंबर हमने सॉल्यूशन कैसे निकाले थे? हमने x की एक वैल्यू पुट करी थी। x को अगर आपने 0 पुट किया तो y क्या मिला? सॉल्व करके y कितना मिला? -10। अगर मैंने x को माइनस कर दिया तो x में हमें x को 0 पुट किया तो y कितना मिला? 10। हमने y को 0 पुट किया तो x क्या मिला? 10। हमने x को 5 पुट किया तो y क्या मिला? 5। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन वंशिका, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इसके? कैन यू गेस? हाँ, 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? 1 पुट करने में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। x को अगर आपने 1 पुट किया, यस सर, इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि जितने पॉसिबल, कितने नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में? हाउ मेनी नंबर्स आते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि आप जो भी x की वैल्यू पुट करोगे कुछ ना कुछ y का मिल जाएगा। आपने x को पुट किया 3, y मिल जाएगा 7। x को पुट किया 2, y मिल जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अब नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? What will happen if we represent these situation on a Cartesian plane? कहां पर? Cartesian plane पर। Cartesian plane में क्या होता है? We have axis, x axis, origin, x dash, negative side, okay? Y axis, positive side, origin, y negative side, okay? अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? These are coordinates. These are coordinates, पेयर ऑफ नंबर्स, ये कोऑर्डिनेट्स है। x को 0 रखो तो y को 10 कर दो, यहाँ पर 10 आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सब 9th में पढ़ा हुआ है। 10 0 का मतलब क्या है? x 10 रहेगा तो y 0, x 10 रहेगा तो y 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर x 10 है और y 0 है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। यहाँ पे कहीं 5 है, यहाँ पे कहीं 5 है, ठीक है, देखो ये भी इसमें पॉइंट लाई कर रहा है, 5,5 भी इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यस, व्हाट इज दिस? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अ लाइन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मिला हमें? लाइन। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज सॉल्यूशन। मतलब ये जितने पॉइंट है ये सारे सॉल्यूशन है। जितने पॉइंट लाइन के ऊपर है ये सारे इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कितने पॉइंट है लाइन के ऊपर? इनफाइनाइटली मैनी, इसीलिए हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये सारी बात क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। अगर यहाँ पे कोई डाउट है, एनीवन?
ध्यान पे जाओगे आपको श्योर ध्यान ध्यान एकदम पक्का आपको सना सना अच्छी की जाओ आपको समझ में आया जितना मैंने बताया इसीलिए आपने 9 में भी पढ़ा था क्लियर देना लेकिन अभी जो समझाया आपको क्लियर हो रहा है आप अपडेट कर पा रहे हो उसको इफ यू फाइंड एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर मुझे बता देना आई विल रिपीट मैं समझा दूंगा हर चीज को समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं आई विल चेंज माय वर्ड्स मैं दूसरी तरह से समझा दूंगा तो समझ में आना चाहिए ठीक है अगर कहीं भी प्रॉब्लम है लेट मी नो आप नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा ठीक है और अभी अभी आपको लगता है तो गलत सर मुझे बता ठीक है हेलो अर्चित हाउ आर यू Fine, sir. ओके अर्चित ये अभी हमने लास्ट क्लास में जो किया था मैंने इसका रिकैप किया है ये सब आपको क्लियर है कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था हाँ सर क्लियर है ठीक है अभी आगे जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनना क्या भी कुछ नया भी होगा अभी राइट ओके नाउ ओके नोट डाउन हो गया अब इसके बाद हम बात करते हैं ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी नाउ आवर चैप्टर इन क्लास 10 इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स राइट तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी विद टू वेरिएबल्स तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक है तो दो एक साथ कैसे लिखेंगे हाउ टू राइट टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली ठीक है तो वेरिएबल तो यही रहेगा x और y लेकिन कोएफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये मैं फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई राइट इज इट क्लियर तो हमने डिस्टिंग्विश कर दिया उसके कोएफिशिएंट से वेरिएबल तो वही रहेगा x और y हमने कोएफिशिएंट से 1 और 2 से ऐसे डिस्टिंग्विश कर दिया राइट अच्छा अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है रूट्स मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है x, y हमें सॉल्यूशन मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड क्यों है क्योंकि जो पहले है वो x को बिलोंग करता है और जो बाद में है वो y को बिलोंग करता है इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि 1,3 और 3,1 दे आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन पेयर ये एक ही पॉइंट नहीं होते तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर है ठीक है इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर ये ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना अच्छा अब हम इंटरेस्टेड है सॉल्यूशन फाइंड करने में सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन one equation in two variable it is very much clear it has infinitely many solution अगर एक इक्वेशन है तो उसमें infinitely many solution है now the thing is how many इसमें क्या है type of solutions now we have to understand this type of solutions तो हमारी type of solution क्या है इसमें थ्री टाइप हमें इसमें 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे वन इज यूनिक सॉल्यूशन
One is situation will be no solution, and one again infinitely many solutions. So we will have three type of solutions. ठीक है? ये कब arise हो रहा है? When we are having a pair. When we are having a pair, तब ये situation arise हो रही है. ठीक है? ये three situation क्यों arise हो रही है? Because we have three possibilities. ग्राफ में हमारे पास three possibilities है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. अब ये जो solution है, how can we find the solutions? So there are two ways. One, we can do it by graphical method. इसके लिए हम ग्राफ पे आज प्रैक्टिस करेंगे. And another method is algebraic method. Algebraic method का मतलब होता है when we have to solve by using mathematical methods, transposition, cancellation, etc. वो होता है algebraic method. So we can use any of the methods. Methods में हमारे होंगे, methods में होगा हमारा solution find करने का graphical method, and algebraic method. Algebraic method में अगेन हमारे थ्री मेथड्स होंगे. कौन से होंगे? यस, कौन से मेथड होंगे algebraic में? Substitution method, elimination method, and cross multiplication method. We have three methods to solve it algebraically. Substitution. So this is what we have to do in this chapter. ये सारा हमारे चैप्टर का एक ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या करना है. इसमें हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करना है और algebraic मेथड भी करना है. क्वेश्चन विल स्पेसिफिकली टेल यू कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है. ठीक है, ग्राफिकल करना है या algebraic करना है, और algebraic में कौन सा करना है या algebraic में नहीं बताया तो आपको जो सूटेबल लगेगा आपकी चॉइस, आप उससे कर दें. ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा. ओके, तो अब एक ओवरव्यू लेते हैं कि अगर हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं, अलजेब्रिक हम बाद में करेंगे. अगर हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे तो वो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. तो यहां पर देखो कि हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1 A B एंड C, A B एंड C, और एक हमारे पास ग्राफ है B, और एक हमारे पास ग्राफ है C. जैसे हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना रखा है. ठीक है ना, इसी तरह से अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने one line has been plotted here, one line, because we had only one linear equation in two variable, तो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया. Now we have a pair of linear equation in two variable. हमारे पास पेयर है, तो हम क्या करेंगे, पेयर को प्लॉट करेंगे. पेयर को कहां प्लॉट करेंगे? साइमल्टेनियसली ऑन वन ग्राफ. साइमल्टेनियसली ऑन वन ग्राफ. तो जब भी हमारे पास प्लॉट होगा तो यहां पर हमारे पास ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करेगी या लाइन पैरेलल होगी. ये दो लाइंस की बात हो रही है. ये टू लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या लाइन पैरेलल होगी या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप. So these are the three possibilities. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है तो मुझे बताओ. ध्यान, कुछ और हो सकता है इसके अलावा? कुछ और नहीं हो सकता? जैसा आप बताओ, कोई और पॉसिबिलिटी किसी को लग रही है? नहीं. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है लाइन के बिहेवियर की. तो जो तीन पॉसिबिलिटीज है वही हमारे थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने वाले हैं. तो एक सिचुएशन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक नो मिलेगा, एक इनफाइनाइट डिफाइन. सॉल्यूशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर. एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो ग्राफ पे लाई करता है, वो हमारा सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो अगर हम दो लाइन प्लॉट करें और ऐसा कुछ मिल जाए, हमें कुछ ऐसा मिल जाए, एक लाइन ये है लाइन 1 और एक लाइन ये है लाइन 2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाए, मतलब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो हमें क्या मिला, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर एग्री कर रही हैं, एक पॉइंट दोनों में कॉमन है. तो यही सॉल्यूशन है, विच इज कॉमन इन बोथ. तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है, और उस सॉल्यूशन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है. तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है. एक ही पॉइंट पे लाइन
इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा तो है नहीं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ज्यादा पॉइंट तो होते नहीं, एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट को हम यूनिक बोलेंगे और वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखते हैं आपको आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हो, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो सीसा मिलेगा, और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वाई एक्सिस पर तो ऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये x, y हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, x, y, राइट है, क्लियर है इतनी बात। चलो अब दूसरी सिचुएशन क्या है, लाइन पैरेलल हो सकती है, लाइन पैरेलल हो सकती है। तो ऐसा कुछ बन गया, मान लो एक लाइन यहां जा रही है और दूसरी लाइन यहां जा रही है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो डू वी हैव एनी पॉइंट कॉमन इन बोथ द लाइंस, वी डोंट हैव एनी पॉइंट कॉमन। तो जब पॉइंट ही कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। When there is no point common, then there is no solution. Clear? थर्ड सिचुएशन में क्या है, हमने एक लाइन बनाई, अर्जित आपको क्लियर है, ये लाइन वन, Yes, sir. और ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, लाइन टू। आपको पता है लाइन की जो लेंथ होती है वो इंडेफिनिट होती है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन एक्सटेंड हो जाती है, एक्स एक्सिस इंफिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव इंफिनिटी। तो राइट साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी होती है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंफिनिटी होती है, उसकी लेंथ नॉट डिफाइंड होती है। तो ये हमने सिर्फ उसका पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, हम पूरी लाइन तो कभी दिखाई नहीं सकते क्योंकि ये इनडेफिनिट है। तो हमने एक पोर्शन यहाँ पे लाके रखा और देखा दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक ही दूसरे के ऊपर है, एक्चुअली दे आर सेम लाइन। जब वो ओवरलैप कर रही है तो वी कैन सी दे हैव एवरी पॉइंट इन कॉमन, they have every point in common, common infinite points है। तो अगर इतने सारे पॉइंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट। जब लाइन ओवरलैप करती है उसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। इसको नोट डाउन करो, अब हम एक प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चंस के बाद, ठीक है, नोट इट डाउन। यू आर वर्षिका, वंशिका। सो वंशिका एक बात मैं आपको बता दूं, अब क्या टारगेट है आपका क्लास 10 में, कितना स्कोर करने का मूड है आपका मैथ्स में। हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की क्लास में। मैथ्स में आपने क्या गोल है आपका कि बोर्ड्स में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, अबाउ Average at least एवरेज। व्हाट इज एवरेज फॉर यू, 80 में से like 80 में से 50 अराउंड, ठीक है। और अगर से ज्यादा आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत खुश हो जाओगे। चलो पहले तो आपका गोल पूरा करेंगे हम कि आपको 50 अबव के लेवल पे लेकर आएंगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, प्रैक्टिस। सारी पढ़ाई एक ही दिन में करनी है, कुछ करते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते वो लास्ट में जाके एक ही दिन में सारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अभी नहीं मैं कह रहा एक साथ करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम से पहले सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप कैसे पढ़ोगे ये थोड़ा सा मुझे बताओ, डेली का। अच्छा, आज आपकी जो क्लास है 1 आवर की है, 4 to 5, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो जितना हम आज पढ़ने वाले हैं रफली इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा घर जाके, और रिजल्ट व्हाटएवर यू वांट। और अगर लास्ट में जाके पढ़ोगे इतना सारा आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो रिजल्ट व्हाट यू गेट, जो मिल जाए वो ठीक है। Got it? बस इस फॉर्मूले को कर लो, डोंट मिस द क्लास एंड रिवाइज एवरी डे। फिर देखो आप कहीं से कहीं पहुंचोगे। आप छोड़ो इस बात को, 9th में चैप्टर वीक था, वो चैप्टर वीक था, सब भूल जाओ, वो मैं सब ठीक कर दूं। आप मुझे बोलो सर ये चैप्टर वीक था, डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा मैं रिपेयर कर दूंगा। सबके जहां जहां रोड टूटी हुई है ना, ब्रिज बना देंगे वहां पे, सब ठीक हो जाएगा। गड्ढे जितने भरे हैं, पॉट होल्स हैं, उन सबको भर देंगे, बस आप पढ़ने वाले बनो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, करो इसको। और डोंट कैरी योर डाउट्स, ये नहीं कि पूछना नहीं है, यू कैन टेक हर हेल्प, उसको बोल देना, लेकिन पूछ के जाओ, चाहे अपने आप पूछो। अभी शुरू में लगता है कि सर से अच्छा एक बात और है, ये बिल्कुल मत सोचना
अगर मैंने डाउट पूछा तो बाकी सब क्या सोचेंगे? समझ, कभी ऐसा सोचते हो क्या क्लास में? हाँ बोलो बोलो, आप जान नहीं, कोई डाउट आता है ऐसा सोचते हो कि मैंने डाउट पूछा तो सब हंसेंगे मेरे पे या कोई सोचेंगे? ऐसा कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है ऐसा। एनीवन? ऐसा लगता है किसी को पास? किसी को नहीं लगता है। तो आपका डाउट है, आप जरूर पूछोगे। आपने क्लास क्यों ज्वाइन करी है? क्योंकि आपकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट है। और अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? तो ये आपको पूछना है। मैं भी बीच में आपसे पूछूंगा, लेकिन आपको जरूर से पूछना। डोंट हेजिटेट, डोंट फील शाय। आप पढ़ने आए हो, पढ़ो एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, जल्दी से नोट करके बताओ, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। और सब अपने पास एक एक ग्राफ शीट रख लो। सबके पास आ चुकी है कि ग्राफ शीट? किसके पास नहीं आई है? ये लो, सब एक एक ग्राफ शीट रख लो। और नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं दूंगा, मेरी लास्ट खत्म हो गई है, मेरे पास और नहीं है। तो अगली क्लास में लेकर आओगे, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ग्राफ के। रचित याद रखना, अगली क्लास में ग्राफ शीट लेकर के आना। और स्केल पेंसिल सब अपने पास रखो। स्केल पेंसिल भी नहीं होगा, ये लो पेन यूज कर लो। अभी स्केल पास कर देना, ये लो स्केल पास कर लो। जितने पास स्केल है ले लो, मेरे पास यही है स्केल। पेन यूज कर लो, कोई बात नहीं अभी। अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सब क्या ले लो, फिर इसको यूज कर लेना। इसके बाद से पास कर दो। यहाँ तक सब नोट डाउन हो गया? यहाँ तक सब नोट डाउन हो गया? ठीक है, आगे चले। चले, क्लियर? जब ये सारा कर लेगा ना, एक मैजिकल ट्रिक आएगी। बिना सॉल्व करे, बिना ग्राफ के और बिना अलजेब्रा के, आप सिर्फ कोफिशिएंट्स के बेस पे बता दोगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन आने वाला। सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखकर आप लोग बता दो, वो बाद में करें, ठीक है? और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है? और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें चैप्टर में क्या क्या है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसमें, ठीक है? तो मजेदार चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। अब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं, ठीक है? एक एक्चुअल पेयर ले रहा हूं। x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आप लोग प्लॉट नहीं करोगे, मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं, आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, ठीक है? और 3x माइनस 4y। तो जिस जिसको प्रॉब्लम थी क्लास 9 में प्लॉटिंग वगैरह की या कुछ भी कर प्रॉब्लम थी, तो वो भी ओवरकम हो जाएगी। अब आप लोग फॉलो करो कैसे प्लॉट करें, मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहला काम आपका ये है, अगर आपके पास इक्वेशन में, चलो बाद में बात करें। चलो, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, और हमारा गोल क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम? सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बोला था व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 3 टाइप की है, कोई भी आ सकता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अलजेब्रा से भी हो सकता है, और एक और मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का, जस्ट बाय लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स। वो सब हम बाद में करने वाले हैं। अभी हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है? तो हम इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाएंगे और इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हमें, आप कांस्टेंट को उधर भी लिख सकते हो, तो ऐसी बात। उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। अच्छा, रिदम मुझे बताओ, हाउ मेनी मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड
how many minimum points are required to draw a fixed line? 3 चाहिए कम से कम, 2 में नहीं बनेगी फिक्स लाइन, कहीं और चली जाएगी, नहीं सर, 2 में बन जाएगी. How many minimum points are required to draw a fixed line? 2. 2 पॉइंट अगर फिक्स कर दो तो there is one and only one line. There is one and only one line which passes through 2 given points. ठीक है, या एक से ज्यादा लाइन पास कर जाएगी बोलो. अगर 2 लाइन फिक्स कर दूं मैं, लेकिन there is a condition. The 2 points should be on the same plane. अब जैसे ये एक प्लेन है, वो एक दूसरा प्लेन है, वो वॉलीबॉल. अगर मैं यहां से और वहां से 2 प्लेन अलग अलग कर दूंगा तो फिर देर वो सिचुएशन बदल जाएगी. उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, वो 3D में आएगा. अभी हम 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, हमें एक ही प्लेन की बात करें. 3D पढ़ोगे आप 11th में, अगर आप 11th में मैथ्स लेते हो, ठीक है. तो अभी हम 2D की बात कर रहे हैं. तो इफ यू हैव 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन, then there is one and only one line that can pass through it. थर्ड क्यों लिया मैंने? थर्ड 3 बनाया करो. थर्ड क्यों लिया? अगर हमसे गलती हो गई, अगर हमने एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया और एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, तो ये एक लाइन नहीं बनेगी. दिस इज नॉट वन लाइन, दीज आर 2 लाइन. तो हमें अपनी गलती का पता चल जाएगा. तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्लॉट 3 पॉइंट्स, वरना 2 से भी काम हो सकता है. 3 क्यों है, रीजन समझ में आ गया. चलो अब मैं इसका बनाता हूं. इसमें मैंने x को 0 रखा, तो y कितना आएगा ये आप अपनी बुक में कैलकुलेट करोगे, मैं रफली मेंटली कर रहा हूं. तो y भी 0 आ जाएगा. यहां से हमें एक रूल को सीख लिया. वो रूल हमेशा याद रखना, भूलना मत. इफ कांस्टेंट टर्म इज 0, इफ कांस्टेंट टर्म इज 0 इन द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है? तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, और ये ओरिजिन से ही तो पास कर रही है 0 0 से. ओरिजिन इज 0 0. तो ये रूल याद रखो, if constant term is 0 then line will pass through origin. चलो ठीक है, 6 और 3 ले सकते हैं. कुछ भी ले सकते हैं बेटा, कुछ भी ले सकते हैं. अब मैंने x को लिया 1, x को मैंने 2 ले लिया. तो देखो x को 2 लेंगे तो हो जाएगा -2y इक्वल टू 0. तो 2 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा. 2 से 2 कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये हमने x को लिया 2, तो y आ गया 1. x को -2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू -1. तो ये ऐसे हमारा, हम इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे. x को -1 लिया तो y हमारा -2 लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये सिंपली हमारे 3 पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए एक पर्टिकुलर लाइन के. एक पर्टिकुलर लाइन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट होते हैं. 2 से काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हमने 3 दे दिए. ओके, नाउ इसमें x को 0 रखो. x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? -5 आएगा. दिख रहा है ना? x को 0 करने से 20/-4. अब मैं y को 0 करूंगा तो क्या होगा? y को 0 रख के मजा नहीं आना, रैशनल मिल रहा है, मतलब अच्छा ठीक है, वो प्लॉटिंग करने में दिक्कत आएगी. तो हम कुछ ऐसा पुट करें थोड़ा सोच करके कि हमें फ्रैक्शनल ना मिले. फ्रैक्शनल को प्लॉट करने में दिक्कत आएगी. ठीक है, तो क्या पुट करें? x को 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा. 6 हो जाएगा. x को अगर हम 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x को हमने 4 पुट किया तो ये कितना हो गया? 12 हो जाएगा. 12 - 4y इज इक्वल टू 20. तो ये हो गया -4y इज इक्वल टू 20 - 12. आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती. ठीक है, -4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 8. सो y इज इक्वल टू -2. तो हमने x को पुट किया 4, y मिला -2. अब समझ लो मैंने क्या कोशिश करी है इसमें? मैंने ये कोशिश करी है मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज ना है, उसको प्लॉटिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इंटीग्रल वैल्यूज बनाने की कोशिश की है. इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर्स हो नंबर. इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स. ये आप थोड़ा सा सोच के कर सकते हो.
ठीक है, और क्या लूं? हाँ, क्या Sir, y को eight- 8 और -4 ले लेता हूँ, 8 और 6 को मैंने -4 लिया उसको, तो -4 से क्या होगा, x को -4 लिया तो क्या होगा यहाँ पर, ये -12 हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 20, तो -4y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 32, सो y इज इक्वल टू -8 ऐसे ओके। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। चलो बनाते हैं इसको। अब मैं जो बना रहा हूं, मैं एक रफली बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ शीट नहीं है, मैं इसको रफली प्लॉट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी इधर से उधर हो सकती है, कोशिश करेंगे मैं इसमें एक्यूरेसी मेंटेन कर दूं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन को लिया, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सबको पता है यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, इज ऑल क्लास 9। अब हम पहली लाइन को बना रहे हैं 0 0, तो हम इसको प्लॉट करते हैं 0 0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर हमारे पास है 2 1, तो ये 2 के साथ 1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास है -2 के साथ -1, ये -2 है और ये हमारा -1 है, ये -1 है, सो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो बेसिकली ये हमारी लाइन जा रही है जो ओरिजिन से पास कर रही है, दिस इज अ लाइन। और लाइन इतनी लंबी बनाओ, छोटी सी मत बना देना, इतनी लंबी बनाओ कि दोनों एक्सिस को तो कट करे, ठीक है ना, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो कार्टेशियन प्लेन में दिख रही है। तो यहाँ पर आप लिख दो इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0, वरना एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे आप लिख दो लाइन 1, लाइन 1 मतलब आपकी इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करिए और लाइन की इक्वेशन को भी इसके ऊपर एक जगह पे लिख दो। अब दूसरी लाइन को लेते हैं 0 के साथ -5, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, तो x 0 है, y -5 है, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ये हमारी लाइन 2 आ रही है, और क्या पॉइंट है इसमें, x 4 है तो y -2 है, x 4 है तो y -2 यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, 4 के साथ -2, ये मैचिंग कर दी। प्लॉटिंग करनी आती है सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है -4 -8, तो -4 इस तरफ आ जाओ, 1 2 3 4, ये -4 है, और -8 5 6 7 8, ये -8, ये हमारा 6 7 8 -8, तो -4 -8 हमारा कहीं आके यहाँ पे मैच करेगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। गलत आ गया ये, अरे मैंने गलत नोट कर लिया, शनि गलत नोट कर दिया, ये प्लस है, ठीक है, चेंज करो इसकी वैल्यूज को,
तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो ये कितना होगा +5 होगा। ये लाइन को भी मैं रेज करता हूँ। क्वेश्चन रॉन्ग था, ये हो गया। तो अगर मैं 0 लूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, x को 0 लूंगा तो +5 आएगा, ये चेंज कर दिया हमने। अगर x को मैं 4 लूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +2 आएगा, तो यहाँ पर +2 आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं -4 लूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा उधर जाकर के 30, ये पॉजिटिव रेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको दोबारा देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 0 के साथ 5, तो 0 के साथ ये 5, हमारा पॉइंट यहाँ पर है 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट आ गया 0 के साथ 5। x 0 है, x 0 है तो y 5, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा x 0 एंड y 5। ठीक है, x 0 एंड y 5, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 एंड y 2, तो x 4 एंड y 2, तो हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला x 4 एंड y 2, ये लाइन पे ही आ गया है ना, ये लाइन के ऊपर ही आ गया। ये वाला सॉल्यूशन होगा, यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड, -4 एंड 8, x को -4 ले लो और इसको 8 ले लो, 5 6 7 8, -4 8 लो। तो अगर हम इन तीनों से लाइन पास करेंगे तो हमारी लाइन कुछ ऐसे होगी, ये लाइन। सो दिस इज आवर लाइन 2, सबको समझ आ रहा है, दिस इज लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 20, ये हमारी लाइन 2। अब इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिला, यूनिक। क्यों, क्योंकि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इसलिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला। वी कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द ग्राफ। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है 4,2, 4,2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक टाइप का, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो 4,2 तो उसका लाइन कर ही रहा है, दिख ही रहा है ना, इसमें दिख रहा है 4,2, इसी से निकाला हमने। इस पे चेक कर सकते हो, अगर x को 4 रखोगे क्या होगा, 4 - 2y = 0, 4 = 2y, तो y = 2 आ गया, अपने आप आ गया, है ना, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। अब आपके सामने ग्राफ शीट है, जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको कर लेना, ट्राई टू प्लॉट दिस। ये लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 2x - y = 2, इक्वेशन 2 4x - y = 4, right? Now find the solution by graphical method. These are the two lines. Rachit, are you there?
अभी सोल्यूशन निकाल लो बच्चे वगैरह इसमें हो जाता है ये क्या क्लास कर आप सॉल्व कर दिया इसको ग्राफ में तो इंटरसेक्ट करेंगे ये करेंगे मतलब कौन सा होता है इसको ये तो बढ़िया है तो मैं ग्राफ एक ही ग्राफ में एक ही कंडीशन दे दूं तो मूव कर अपन कौन से सारे पॉइंट्स कर तीन पॉइंट्स इसके तीन पॉइंट्स और ये ना लाइन इज ओवर ड्रॉ ये एक पॉइंट को कर या फिर एक पॉइंट ले कर तो देना पड़ेगा कोई बात मैं कौन से कंट्रोल कर रहा है माइनस 4 अभी जब एक्स पे दो पुट कर रहा है तो इस वैल्यू आएगी ना वो अभी मेरे 0 पे गिरा on my y can so minus 3 for that other minus negative plus again 6 in the box what's the question I know oh thank you इसका मैं दो को रेट दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 minus 2 into 2 इसके ठीक है तो दो ठीक है भाई पूरा वैसे छोड़ा गया तो उधर जाएगा 2 minus 4 2 minus 5 is equal to 2 minus 4 minus 5 is equal to minus 2 minus 2 साथ में इनके अंदर ठीक है बना रहे इसमें बना हुआ है बनाने की जरूरत नहीं है इसमें बना हुआ है और हमेशा ना यहाँ पर सेंटर से लेते हैं आप लोग गलत दिमाग से आप ओरिजिनल ऐसा वाला पॉइंट लो यहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है 1 2 करने की जरूरत ही नहीं है समझे आपने इसके सामने किया ग्राउंड प्लॉट ऐसे तो क्या आपने किया मेरे को लगा ग्रीन लाइन वाला कर दूं डार्क लाइन को यूज कर दिया तो कहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं ये देखो ये ग्राफिक मेरे सामने आया है ये इंटरसेक्ट कर रहा है 10 पर 10 कॉमन पॉइंट है दोनों में ये आप बिल्कुल फेयर करके प्लॉट करके मेरे पास लेकर आओगे और क्रिएट लेकर आओगे ग्राफ के और क्वेश्चन करेंगे देख रहे हो आपने दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0 जब आप ठीक से प्लॉट करोगे अगर शुरू में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं दिखा दूंगा आपको हम और प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी लेकिन आप ये करके लाओगे आराम से जैसे मैंने किया है मैंने कैसे प्लॉट किया है
इसी तरह से पॉइंट्स बना करके पॉइंट्स आपको उसे मार्क करके प्लॉट करने हैं। 3 पॉइंट होंगे तो गलती नहीं होगी, 2 पॉइंट में गलती हो सकती है। और क्वेश्चन ध्यान से नोट करना, जैसे मैंने प्लस का माइनस नोट कर लिया था, क्वेश्चन ही बदल गया था, तो लाइन ही अलग डायरेक्शन में जा रही थी, तो इस बात का ध्यान रखना है, केयरफुली करना है, ठीक है, वरना सारी चीज चेंज हो जाएगी इसमें, तो इसको केयरफुली करना है, राइट। यस बेटा आप बताओ, कोई समझ में आया आपकी क्लास में? ये देख लो आप। अब नेक्स्ट क्लास में मंडे में कोई ग्राफ लाना मत भूलना, ठीक है। मेरी बुकलेट में कितने बच्चे हैं? मेरी बुकलेट में कितने बच्चे हैं? तो बस इतना ही है मेरे पास, ठीक है, डोंट फॉरगेट। क्लासरूम नंबर 4, ये क्लासरूम नंबर 1 है, आपको 4 में जाना है।
हाँ बच्चे में आके नीचे पड़ी रहती है क्योंकि ना ये कैसे तो जो है
Yes. But then it's more about how